Good morning. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Come Good morning, fast. ma'am. हाँ, good morning. जल्दी जल्दी आइए. We are continuing the chapter sources of the energy. Come fast. मैं स्टार्ट कर देती हूँ. और बताइए, पढ़ाई हो रही है आप लोग की? आप लोग सब लोग कैसे हैं घर पे? अच्छे है मैम. अच्छे. अनन्या घोष, सारिका, हर्षराज, सार्थक, अनुकल्प, आदित्य श्रीवास्तव, सब लोग घर में अच्छे हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस. Yes, ma'am. हाँ, अपना केयर कीजिएगा बेटा. अभी बहुत मतलब पैंडेमिक का समय है, बहुत क्रिटिकल पोजीशन है. सारे बच्चे अपना केयर करें. रोज वार्म वाटर पीजिए, थोड़ा सा फ्रूट्स खाइए, और जो भी न्यूट्रिशियस चीज हो जो मम्मी आपको देती हैं जरूर खाइए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बूस्ट अप योर इम्यूनिटी. यस. एक मिनट रुक के मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ. तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक. एनी पॉइंट्स हियर? कुछ ऐसा पॉइंट है कि आप नहीं समझ पाए हैं? सारिका, अनन्या घोष, आदित्य श्रीवास्तव या कोई भी? एनीवन? एनी टॉपिक? ओके, आई एम 2 मिनट्स आई एम आस्किंग क्वेश्चन जब तक सारे बच्चे आ रहे हैं. चलिए मैं पूछती हूँ. आदित्य श्रीवास्तव, व्हाट इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? आदित्य. A source of energy that can use as many times. Okay. And Ananya Ghosh, can you tell me what is the renewable source of energy? Ananya Ghosh, are you listening? Good morning, ma'am. Yes. Ananya Ghosh, can you tell me what is the renewable source of energy? Okay. What happened, Ananya? Ritvika, sorry, Sarika, tell me what is the renewable source of energy? Ma'am, the sources of energy which can renew in a short period of time. Oh, अच्छा. चलिए. Krishna Verma, can you tell me difference between renewable source of energy and non-renewable source of energy? Yes, ma'am. A renewable source of energy. A renewable source of energy in natural resource that can replenish itself naturally over a short period of time. Non-renewable source, energy source which get used up and cannot be replenished or reused in a short period of time are called non-renewable source. Example of renewable source are uh, wind, sun, biomass energy. Yes. Sorry, and non-renewable source example, fossil fuel like petroleum, nature, gas. Okay. chalo. Okay. Sarthak, can you tell me what physical state of the fuel? Physical state? Liquid, gas, and solid. Ah, yes. So Aditya Srivastav, can you give me the example? All three state? Ma'am, can I? Okay, Suryan. Can I? Ma'am, solid, coal, liquid, Ma'am, petroleum, solid में fire coal, gas, charcoal and PNG. coal, and liquid में kerosene, petrol and diesel, and gas में petroleum gas, CNG, compressed natural gas, and LPG, liquefied petroleum gas are the example of gas. Okay. Okay, the children, I think you know all the topics, whatever I taught earlier.
So I'm just starting the what is the coal. Day before yesterday we discussed it, but again I'm starting. And on your video, maximum student अपना video on कर लीजिए. चलिए. Now, तो coal हमने पढ़ा था. It is a complex mixture containing carbon, hydrogen with small quantity of other elements, and it is a notably it is sulfur is also there. So coal is a mixture. What is the coal? It is a mixture containing carbon. It contains the carbon, hydrogen, and also other elements. But ये note किया गया है कि little bit sulfur is also there. Okay, children. So now it is a combustible black rock or brownish rock, sedimentary rock, matlab which contains so many stones, that is called a sedimentary rock, and one of the fuel that has been used for the cooking purpose. Yes, you know very well, it is used in cooking purpose also, and it produces lot of smoke and foul smelling gases, and we discuss it ki how gases is harmful to us, and name of the gases is carbon monoxide, carbon dioxide, etc. And also it is used for the generation of the electricity. So many coal mines are there in India, and it is used our production of the electricity through the coal. Now children, we are discussing the point formation of coal. How can we produce the coal? How can we produce the coal? So children, it is given in your book, coal was formed from the plant got buried deep under the earth crust. Over the large period of time, chemical and physical property of these plants remain were changed through the geological action. Means ki children, those action which is held inside the earth, that is called geological action. And geological means ki when geological department means ki when we can study about the anything which is found under the earth. अर्थ के अंदर जो जो पाए जाते हैं उनका हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम जियोलॉजी कहते हैं. तो यहाँ पे है कि एक्शन होता है, जियोलॉजिकल एक्शन होता है. तो जियोलॉजिकल एक्शन हो गया, जैसे हीट हो गया, प्रेशर हो गया, और जियोलॉजिकल एक्शन हो गया. तो कन्वर्जन ऑफ, children you listen very carefully, conversion of dead plant material into coal is called carbonization. Is called carbonization. Question will come in your examination. It is definitely come. It is very important. What is the carbonization? So you can tell carbonization means ki conversion of dead plant material into the coal. And a dead plant से जब coal का formation होता है, तो that we call the carbonization. Is it clear? Do you understand? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, so that means कि you can say in another word, आप दूसरे word में भी कह सकते हैं कि what is the carbonization? Slow conversion of dead tree and plant into coal. Slow conversion of dead tree and plant into coal is called the carbonization. Yes, children, slow conversion तो होता ही है because it takes millions of the year to formation of the coal. That is, it is not renewable. It is not renew again and again. So now, before the type of the coal, पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम फॉर्मेशन ऑफ कोल का और भी डिटेल में पढ़ते हैं. मैं आपको कुछ मैं बताती हूँ. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. आई एम टेलिंग यू फॉर द योर नॉलेज. आप तो ये जान गए कि कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोल, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल. इट इज अ स्लो प्रोसेस, and conversion of dead plant and tree into the coal, that is called the carbonization. But children, you know, it takes millions of the year. That is why I call it slow process. Millions of year. Let us see the coal कैसे millions of year लेता है, हम लोग देखते हैं. About 300 million years ago, our earth was covered with dense forest. Yes, you know very well कि 300 million year back की मतलब पहले की बात हम कर रहे हैं. उसके पहले की बात कर रहे हैं जब हमारा फॉरेस्ट, हमारा जो लैंड था, हमारा जो अर्थ था, इट इज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट एंड स्वाम्पी लार्ज ह्यूज ट्री. ह्यूज ट्री में फर्न थे, अदर लीफी प्लांट थे. ऑल दिस ट्री एंड अदर प्लांट डाइड. एक ना एक दिन तो ये गिरेंगे ही ना. तो ऑल प्लांट डाइड and they fell down
on wet and swampy floor. उस पे ये गिर गए. After dead ये उस plant उस पे गिर गए. Dead on just ये fell down on the wet and swampy floor of the forest and began to sink into the soil. Soil began to sink into the soil. More and more dead vegetables, gravel, soil deposit over them. उसके ऊपर deposited होते रह गए. यानी plant तो गिर गया on the swampy floor पे, उसके ऊपर आपके more and more dead vegetables हम लोग डालते गए. Dead vegetables हो गए, gravels हो गए, soil हो गए. डिपॉजिटेड ओवर देम, उसके ऊपर डिपॉजिटेड होते गए. एंड द हीट, उसके बाद उसमें हीट एंड प्रेशर भी लगा. उसके बाद क्या लगा? हीट एंड प्रेशर भी लगा, जियोलॉजिकल एक्शन भी हुआ. एंड हीट एंड प्रेशर फ्रॉम द टॉप लेयर ग्रेजुअली टर्न रिमेन्स ऑफ द प्लांट इनटू द, और धीरे धीरे रिमेन्स ऑफ द प्लांट टर्न इनटू कोल. तो डिटेल में शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो आप आराम से लिख देंगे कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट इनटू कोल, दैट इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन. लेकिन आप देखेंगे ये 4 मार्क्स का है तो थोड़ा एक आध वर्ड और ऐड कर देंगे, बिकॉज 4 मार्क्स में टीचर्स भी सोचते हैं कि थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखे. तो आप लिख सकते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं चिल्ड्रन कि अर्लियर टाइम मिलियंस ऑफ ईयर 300 millions of years ago our earth is covered by the dead forest and swampy area is there. So now dead forest is fall down on that area, and again more and more dead vegetables, soil, gravels are deposited over them, and the heat and pressure from the top layer gradually turning this plant into coal. So it is a big, okay. So now the slow conversion of dead tree and other plant in coal is called carbonization. So you can write. Can you tell me, Aryan, what is the carbonization? The process Aryan? of conservation. The process of conservation of dead plants and animals is called carbonization. Yes, very good. Good. You have given good answer. अब हम लोग we are just coming to the type of coal. Children, you read in SST type of coal. आप वहाँ पे type of coal का पढ़े ही होंगे, but we are reading here in a very restricted form. तो depending on the temperature, coal का formation तो हो रहा है. अब कैसा formation होगा? ये तो depend करेगा temperature पे, heat पे, pressure के condition पे. ये किस पे ज्यादा pressure लगा, किस पे ज्यादा temperature हुआ. तो depending on the temperature and pressure condition and time period for which fossils remain buried under the surface of earth. On the surface of earth, different variety of the coal was formed. So different variety of the coal has been formed. Formed हुआ, किसी पे ज्यादा प्रेशर लगा, किसी पे ज्यादा टेम्परेचर, कोई ज्यादा अंदर, काफी टाइम से अंदर है. So it is depending on that geological action also. So now different type of coal we are reading here. First is a peat, lignite, bituminous, and anthracite. So four types is given here. First is peat, second is lignite, bituminous, and anthracite. So you read it properly. आप इसको याद कर लेंगे कि how many types है. तो पीट का ये डायग्राम जरूर बनाएंगे. मैंने आपको बोला था ये आप कॉपी में ये डायग्राम बना लेंगे. मे बी इट कम इन योर एग्जामिनेशन. वैसे तो आपका अक्यूरेंस ऑफ पेट्रोलियम का तो आता ही आता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट दिस डायग्राम ऑल्सो यू जस्ट ड्रॉ इन योर copy, science copy. So children, so how many types of the coal? There are, anyone asked you, you said there are only 4 types of the coal: peat, lignite, bituminous, and anthracite. So 4 types. Now we see what is the type and how many percentage of coal are there, how many percentage of other things are there. So हम आते हैं, these different type of coal differ from each other in terms of their content of the volatile material and presence of the carbon, moisture, and other elements. Means कि we are divided into types. We can categorize it into present of the carbon. इतना coal है तो कार्बन का presence तो होगा ही. But how much coal are there? Sorry, how much carbon are there? Carbon, how much carbon are there? Moisture are there, and other element are there. But children, you just see volatile material. Can you anyone tell me what is the volatile material? Yes?
मैं बताती हूँ। वोलाटाइल इट इज अ वर्ड दैट आई डिफाइंड इट, मैं आपको डिफाइन करती हूँ। व्हेन यू गो इन 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड यू रीड फ्रीक्वेंटली दीज वर्ड। तो मैं बताती हूँ कि वोलाटाइल सब्सटेंसेस यू कैन राइट इन योर बुक, आप बुक के कॉर्नर पे लिख लीजिए कि वोलाटाइल मटेरियल चिल्ड्रन ए सब्सटेंस दैट इवापोरेट, मीन्स कि वोलाटाइल मटेरियल किसे कहते हैं। You can say, anyone ask you that evaporate radially, substance that evaporate radially at normal temperature. Okay, that substance that evaporate radially at normal temperature, that is called the volatile material, that is called petroleum। अब पेट्रोल को खोल के छोड़ देंगे और तो ये पेट्रोल उड़ जाएगा। किसी की टंकी कभी खुली रह जाती है, कार में, गाड़ी में, कहीं भी, आपके बाइक में, कहीं भी, तो पेट्रोल उड़ जाता है। तो दैट मीन्स कि यू कैन से द व्हाट इज द वोलाटाइल मटेरियल, तो मटेरियल दैट कैन इवापोरेट रेडियली। यू कैन राइट कॉर्नर्स ऑफ द बुक, टेक आउट द पेंसिल, राइट इट फास्ट, लिखे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Substance that evaporate radially at normal temperature। एग्जाम्पल में आपका पेट्रोल भी आ गया, कोल भी आ गया। तो दिस मीन्स दैट these are means so many materials are present in the coal, that volatile material, carbon, moisture and other element that decided the type of the। अब ये डिसाइड करता है कि कोल का टाइप क्या है। तो पहले हम लोग आते हैं पीट में। चिल्ड्रन, peat is a soft brown substance है, it is brown color, it is soft brown substance है, it is a brown color, okay, it is a soft brown substance है, that is made up the 30% of carbon। you definitely learn it, ये आता है short questions में भी आता है। Ma'am, in which type of coal contains 30% of carbon, you can write this। ma'am, peat कहाँ रहता है? पीट मतलब कहाँ क्या रहता है, हर जगह पाया जाता है, बट कुछ स्पेसिफिक जहाँ पे रॉक्स वगैरह ज्यादा रहते हैं, वी कैन गेट फ्रॉम देयर वेरी इजिली। तो पीट पहला पीट टाइप है, इट इज सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस है, मेड ऑफ द 30% ऑफ कार्बन है। इट कंटेन हाउ मच परसेंट? 30% ऑफ कार्बन है। इट इज द अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल, मतलब ये कोल का अर्लीस्ट ही स्टेज है, यानी बहुत अर्ली स्टेज है, फर्स्ट सेकंड स्टेज है। अभी टोटली कोल का फॉर्मेशन नहीं है, वही स्टेज है, उसमें बहुत लोग इसको निकाल लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड पीट। एंड क्वेश्चन आएगा कि हाउ मच कंटेन द कार्बन, यू कैन राइट 30%। अब हम आते हैं लिग्नाइट पे। लिग्नाइट हैज बीन कार्बन कंटेन 38%, यानी ये कंपैरिजन ऑफ पीट के इसमें ज्यादा है, 38% से इसको 40% कहा गया है। सिर्फ 38% नहीं, 38 to 40 के बीच में पाया जाता है लिग्नाइट में। ओके चिल्ड्रन, और ये भी ब्राउन कलर का होता है एंड इट इज थोड़ा सॉफ्ट होता है, इट इज लिटिल बिट सॉफ्टर इन कंपैरिजन ऑफ अदर। इट कलर पूछेगा तो ब्राउन कलर, ये बुक में आपके नहीं दिया है, वहां पे लिख सकते हैं, यू कैन राइट लिग्नाइट के बगल में लिख सकते हैं कि इट इज अ ब्राउन इन कलर एंड सॉफ्टर। बुक में लिख लीजिए कि क्वेश्चन 8 में घुमा के पूछता है, तो आप बुक में लिख लीजिए इट इज ऑल्सो ब्राउन इन कलर एंड सॉफ्टर। मैं जो कुछ एक्स्ट्रा बता देती हूँ, यू नोट डाउन इन योर बुक। तो इट इज ऑल्सो ब्राउन कलर एंड सॉफ्टर इन कलर एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 38 to 40%। इट इज अ लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, इसका क्वालिटी कहा जाता है कि इट इज लोएस्ट ग्रेड है एंड इट हैज बीन यूजुअली इन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, या इट इज यूज मेनली फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, यानी इसको इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आप ये कह सकते हैं कि इट इज वेरी सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई इट चूज लिग्नाइट कोल को इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि इसमें कार्बन भी थोड़ा ज्यादा होते हैं and it is very good for the production of electricity. Now children, we come to the next point, bituminous coal। bituminous coal, children, bituminous coal में ये इसमें 65% कार्बन है, तो आप लिख सकते हैं कि कार्बन हैज फाउंड बिटवीन 60 to 65%।
In some book it is given 60% and some given 65%. So you can write between 60 to 65% carbon. And it regarded as lowest grade of the year, and it is also used for the power generation and making another type of fuel that is called coke. ये भी power generation में use होता है. तो question आएगा कि write down the two name of the two coal that is used for the production of power generation. तो आप लिख देंगे lignite and bituminous coal. ठीक है. फिर कार्बन का कितना परसेंटेज है, तो आप लिखेंगे इसमें 60 between 65% है. और इससे अनदर मेकिंग ये अनदर टाइप ऑफ फ्यूल को प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कोक. ठीक है. ये कलर इसमें नहीं लिखा है आपका, ये ब्लैक कलर का होता है. चिल्ड्रन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू राइट इट. इट इज ब्लैक इन कलर एंड ब्रेक वेरी इजली बिकॉज इट इज सॉफ्ट ना, so it is break very easily and color is black. ठीक है. तो आप लिखेंगे कलर इसका ब्लैक है एंड इट इज वेरी यूज फॉर मेकिंग कोक. Now next, so anthracite है. So anthracite, children, you know, keep it in mind. In anthracite contain 90% of carbon, 90% carbon, like that. And in, wow, its quantity percentage of carbon is very much high. तो it is shiny black है. कलर क्या है इसका? shiny black है और ये very hard है. तो कोल तो मतलब हमारा जो कोल होता है वो तो हार्ड होता है. इट इज वेरी हार्ड एंड शाइनी सरफेस. ठीक है. एंड इट इज रिगार्डेड एज अ हाईएस्ट. इसको इसलिए इसको चूंकि इसमें कार्बन चिल्ड्रन 90 to 90% रहता है, इसलिए इसको हाईएस्ट ग्रेड कोल का माना जाता है. कोल का माना जाता है कि बहुत हाईएस्ट ग्रेड है. ठीक है. इसको हाईएस्ट ग्रेड कोल माना जाता है. इट कंटेन 90 to 91% कार्बन. अब आएगा कि कलर क्या है, तो आप देखेंगे ब्राउन इन कलर और वेरी सॉफ्ट, सॉरी शाइनी ब्लैक कलर. हाँ, शाइनी ब्लैक कलर एंड वेरी हार्ड, नॉट सॉफ्ट चिल्ड्रन. ठीक है. तो अब हम आते हैं. आई थिंक इट इज कंप्लीटेड एंड टुमारो अगेन आई विल आस्क यू. यू रीड इट वॉट एवर आई टॉट यू. जो भी मैं आपको ये चैप्टर यूज कौन सा? यस आर्यन. चारों कोल में सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? सबसे ज्यादा देखो एंथ्रासाइट यूज होता है फॉर द जनरली होता है क्योंकि इसमें 90% कार्बन होता है, तो इसको बहुत हाईएस्ट ग्रेड का कोल माना जाता है. लेकिन लिग्नाइट एंड बिटुमिनस यूज होता है बहुत टू द पावर जनरेशन. ये जनरली पावर जनरेशन में यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये तो बहुत यूजफुल ना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है. और पीट है कि इसमें बहुत कम होता है. हाँ, तो कम यूज होता है. एंथ्रासाइट ज्यादा कॉस्टली है. हाँ, एंथ्रासाइट कॉस्टली होगा ही. ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, इसमें 90% कार्बन होगा तो ये तो गुड क्वालिटी हुआ ना. कोल किस लिए हम मान रहे हैं? कार्बन के लिए ना. अदर एस्पेक्ट देखिए तो कार्बन ही ना हमें चाहिए. अदर एस्पेक्ट है कि कार्बन. चलो नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट. ठीक है. चिल्ड्रन, यू ऑलवेज कीप इट इन माइंड. स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, strong heating of coal in the absence of air is called the destructive distillation. Children, this chapter is very easy and so many terms are coming, but that term is very easy and you learn properly. So strong heating of coal in absence of air is called the destructive distillation. What is the destructive distillation? Strong heating of coal in Heating absence of air. Very good, Meenal, and very good, Aryan, and so many students with the answer. Yes, Suryansh? मैम नहीं समझे. Strong heating of coal मतलब कोल को जब ज्यादा हीट करेंगे, एब्सेंस का सब्स्टिट्यूट लिया जाता है. in the absence of oxygen is called the destructive distillation. ठीक है. हम लोग आगे पढ़ते हैं तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे. We obtain many products. अब उसको हीट कर लिए तो हीट करने पे we will get the many products. क्वेश्चन आएगा what product we are getting after the strong heating of the coal. तो आप लिखेंगे coke, coal tar, coal gas through the destructive distillation of coal. ये भी क्वेश्चन बहुत आता है मेरे माइंड. जो क्वेश्चन मैंने बहुत साल से हम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे हैं ना, तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आता है ज्यादा. ये आएगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव
आप आराम से लिख देंगे coal tar and coal gas, that is the product of the destructive distillation. It is a product of the destructive distillation. ठीक है, तो अब हम आते हैं कोक पे आते हैं। तो मतलब आप लिखेंगे coal is heated in absence of oxygen and that is called the destructive distillation, and product that is formed, that is coke, coal tar and coke, coal gas and coal tar। ठीक है, एंड चलो अब हम लोग अलग अलग सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है। व्हाट इज द कोक? चिल्ड्रन, कोक के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इट इज हार्ड, ये हार्ड होता है, पोरस सब्सटेंस है, लिटिल बिट पोर इज देयर, एंड मेन यूजेस आर main uses are given here. Mute yourself. तो अब कलर पूछेगा तो कोक का कलर आप बताएंगे ग्रीनिश ब्लैक इन कलर है, ग्रीनिश ब्लैक कोक का COKE, कोक का ग्रीनिश ब्लैक कलर है, बट इज नॉट एज शाइनी एज कोल, इट हैज रफ टेक्सचर। तो किस टाइप का टेक्सचर है? रफ है। व्हाट इज द टेक्सचर? इसका रफ है। ठीक है, हाँ। तो अब आप बुक में देखिए लिखा है used as domestic as well as industrial fuel in stove, furnaces, it give little smoke. Oh children, smoke के point से तो हमारा कोक बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत लिटिल कोक देता है, मतलब लिटिल बीट ये हमारा स्मोक देता है। और ये क्या जनरली स्टोव और फर्नेसेस में यूज होता है। फर्नेसेस मतलब इसको हम भट्टी कहते हैं, बहुत बड़ा भट्टी में यूज होता है, और ये हमारा कम स्मोक देता है। ठीक है, इट इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में भी यूज होता है। एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल को प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को हम निकालने में यूज होता है। एंड इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस लाइक CO plus S2, एंड CO plus S2 को कंबाइंड फॉर्म में वाटर गैस कहते हैं। तो आप लिखेंगे इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस, it can be made to use the fuel gases like carbon monoxide and hydrogen. अब यही क्वेश्चन आएगा कि tell me the name of type of coal या product of the destructive distillation that is used for making the formation of water gas. तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? कोक। क्या लिखेंगे? कोक। कोक। क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है आप कोक तो पढ़ने जा रहे हैं, कोक तो कोक का कलर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ग्रीनिश ब्लैक। Greenish black. हाँ, और टेक्सचर ग्रीनिश ब्लैक कलर। टेक्सचर क्या है? रफ। हाँ, रफ। और क्वेश्चन क्या कि इफ इट विल आस्क, एक दो और आप इसका बताइए व्हाट इज द यूजेस। तो आप लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल and used for domestic as well as industrial fuel. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट में कोल तार। कोल तार आते हैं, ठीक है, कोल तार आते हैं। अब क्वेश्चन जानते हो, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। एक क्वेश्चन आता है, इज कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल? इज कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल? तो आप लिखेंगे कि यस, this is because coke does not produce smoke. जैसा हमने पूछा, अभी आपको बताया कि क्वेश्चन आएगा coke is better than coal, तो आप लिखेंगे yes, it is better than. Why? तो लिखेंगे कि because it produce very less smoke on burning, and also coke produce more heating on burning, and heating ज्यादा देता है और smoke कम देता है as compared of the coal. तो आप लिखेंगे yes, it is very good, coke is very good because it give enormous heat, it give enormous heat but less smoke. तो ये तो अच्छा हो ही गया, लिखेंगे yes। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कोल तार में। चिल्ड्रन, कोल तार इट इज अ ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड है। ठीक है, विस्कस मतलब स्टिकी लिक्विड होता है ना, उसको विस्कस कहते हैं, तो थोड़ा सा चिपकता है, दैट इज कॉल्ड विस्कस। स्टिकी कौन, उसका जो कंसिस्टेंस होता है ना, दैट इज अ स्टिकी होता है, उसका कंसिस्टेंट होता है, दैट इज स्टिकी होता है। तो कोल तार आप लिखेंगे इट इज ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड, इट इज
आप लिखेंगे यस इट इज ब्लैक कलर, इट इज ब्लैक कलर विस्कस लिक्विड है एंड इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाई, क्योंकि इसका जो होता है कंसिस्टेंसी होता है थोड़ा स्टिकी होता है, दैट इज यूज इन डाई, ड्रग मीन मेडिसिन, एक्सप्लोजिव मीन्स कि जितना भी हमारा एक्सप्लोजन होता मटेरियल होता है एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल, छत बनाने में रूफिंग मटेरियल में दिस इज यूज्ड। तो बिकॉज इट इज अ विस्कस टाइप ऑफ मटेरियल, तो क्वेश्चन आएगा कि फोटोग्राफी मटेरियल मतलब यस फोटोग्राफी मटेरियल फोटोग्राफी मटेरियल मतलब श्रेयांश ये हुआ कि फोटोग्राफिक मटेरियल मतलब जो हमारा फोटोग्राफी होता है, जो हम फोटो खींचते हैं या जो भी फोटोग्राफी होता है, तो फोटोग्राफी जब होता है तो कुछ कंटेंट्स होते हैं, याद है ना जब पहले पॉजिटिव और नेगेटिव बनता था, बहुत पहले, आप नहीं जानते होंगे, आप तो बहुत छोटे बच्चे हैं। हम लोग जब छोटे थे ना बच्चे, तो जानते हो उस समय ना बहुत छोटे थे, या फिर मेरे जो बड़े ब्रदर लोग थे वो लोग छोटे थे, वो लोग छोटे थे ना, तो उस समय ना हम लोग कैमरा खरीदे थे, तो कैमरा खरीद के हम लोग फोटो खींचते थे। मतलब वो लोग छोटे थे तो हम तो बहुत ही छोटे होंगे, या फिर हम नहीं भी होंगे, जो भी उस समय की मैं बात बता रही हूँ। तो जानती हो उस समय ना हम लोग कैमरा हम लोग के पास था, तो हम लोग अपना घर में कैमरा, आप लोग अभी मोबाइल की वजह से कैमरा लोग यूज नहीं करते हैं, केवल फोटोग्राफर मैम देखे हैं, हाँ, तो उस समय मैम यूज पता है करते हैं। उसमें हम लोग ना मैम यूज वाला वो वाला कैमरा देखे हैं। हाँ, आपके घर में भी होगा, आप देखेंगे मम्मी पापा, उसमें पता है हम लोग मैम रोल है रील लगाते थे, इसको रोल कहते थे। वो हम लोग मार्केट में जाते थे और स्टूडियो में भर लेता था, वो रील लगाते थे, अब उसे 36 फोटो खिंचाता था, कभी कभी मोर देन भी खिंचाता हुआ, तो उसे हम लोग घर में कोई भी फंक्शन हुआ क्लिक 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 फोटो खींचते थे, तो क्लिक क्लिक फोटो खींच के उसको निकाल के हम लोग देख भी लेते थे कौन फोटो अच्छा आया, तो वो नेगेटिव निकलता था, तो नेगेटिव वो ब्लैक कलर का होता था, और उसको फिर हम लोग है ना मैम थोड़ा ट्रांसल्यूशन टाइप का। हाँ, उसको हम लोग स्टूडियो में देके उसका पॉजिटिव कराते थे, पॉजिटिव वो हम लोग उस समय ना शायद मुझे लग रहा बाद में कलर फोटो का आया, जब मैं आई हूँ तब, मेरे ब्रदर लोग जब छोटे थे उस समय फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बना के देता था, तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनता था, ये नेगेटिव फोटो जो रहते थे, दैट इज द फोटोग्राफिक मटेरियल, इसी में कार्बन यूज होता होगा, कोल तार, क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता था ना, तो सम मटेरियल आर यूज देयर। तो चिल्ड्रन दैट इज द इट इज यूजेस आप सारा लर्न कर लेंगे, मैं पूछूंगी, मैं एवरीडे पूछूंगी, अभी आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारे पास 2 दिन है, 2 दिन में मेरा ये चैप्टर हो जाएगा, और मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में हो ना, तो हम लोग को फटाफट पढ़ना भी है, बट मैं बिटवीन दैट आई विल आस्क द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी पूछती रहूंगी, आज बहुत बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, कल मैं फिर उनसे पूछूंगी, तो ये हमारा कोल तार का जो पूछेगा कि क्या ये इसका इम्पोर्टेंस है, तो आप लिखेंगे इट इज यूज इन सिंथेटिक डाई, ड्रग, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कोल गैस में। अच्छा, कोल तार को और कुछ बता देते हैं, कोल तार कंटेन मेनी यूजफुल केमिकल, और ये पता है चिल्ड्रन, यहाँ आपका दिया नहीं हुआ है, इंक में भी यूज होता है, वहां पे लिख लीजिए, इट इज यूज्ड इन it can use to make ink, ink जानते थे जो आपके यस मैम ink आता है, अभी तो आपके समय में दूसरा इंक Yes, आता है, हम लोग के मैम समय पता है, फाउंटेन पेन। हाँ चिल्ड्रन जानते हो, हम लोग के समय में ना हम लोग एक पूजा भी करते थे, हम लोग के समय ना इंक का शीशी आता था, 2 इंक का शीशी, ब्लू एंड रेड, और है ना हम लोग पेन जो होता था उसमें एक ना निब टाइप का रहता था, और हम लोग उससे लिखते, जेल पेन, हाँ जेल पेन उस समय वैसा होता था, और उसमें हम लोग इंक भर लेते थे और हम लोग आराम से लिखते थे, अपना लीड वाले पेन का आ गया, और फिर आप लोग जेल पेन यूज करते हैं, तो उसमें शीशी में इंक मिलता था, मैम फाउंटेन पेन। हाँ फाउंटेन पे, पता है जानते हो ग्रीन कलर का भी इंक मिलता था, हम लोग भरे ना, हम लोग इंक को उसको फील करें या ना सिरिंज की तरह से फील करते थे, एक सिरिंज ले लेते थे, उससे लेकर फील करते थे, बहुत मजा आता था, दिन भर यही करते रहते थे, और ग्रीन कलर का हम लोग कम भरते थे, बट ग्रीन कलर भी हम लोग रखते थे, कभी कभी ग्रीन कलर से लिखते थे, वैसे ग्रीन कलर जनरली एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा जाता है, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ग्रीन कलर से लिख सकते हैं, तो कुछ अथॉरिटी रहता है, बट हम लोग ग्रीन कलर खरीद के अपना यूज करते थे, तो जनरली रेड ग्रीन ब्लू आता था, ब्लैक, हाँ ब्लैक भी आता था, तो हम लोग
देखो जानती हो, अभी तो तुम्हारे समय में इतना टीवी है, हम लोग बहुत टीवी भी उस समय नया आया था, कम ही टीवी देखते थे हम लोग, ये सब काम ज्यादा करते थे। बट इंक भर रहे हैं तो लिख रहे हैं, तो अभी तो सब आपको रेडीमेड मिल जा रहा है, आपको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब मम्मी पापा कर देते थे, हम लोग सब लोग अपना करते थे, लिखते थे, पढ़ते रहते थे, हम लोग पढ़ाई भी बहुत करते थे। चलिए, पढ़ाई तो आप भी करते हैं बहुत। चलिए, तो ये इंक में यूज होता है, डाई तो मैंने बता दिया। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मतलब जो जब मैं कपड़ा धोने वाला साबुन सब होते हैं, डिटर्जेंट भी यूज होता है। इंसेक्टिसाइड्स, यानी जो मेडिसिन बनता है ना इंसेक्ट को मारने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। एंड आर्टिफिशियल फाइबर में यूज होता है। तो ये सारे बहुत से एग्जाम यूजेस हैं यहाँ पे दिए हैं, सारे आप याद कर लेंगे। अब हम आते हैं, थर्ड हमारा पॉइंट होता है कोल गैस। ठीक है, क्या हमारा थर्ड पॉइंट है? कोल गैस। तो कोल गैस चिल्ड्रन, इट इज अ इनफ्लेमेबल गैस एंड इट इज यूज इन डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल मीन्स की जो घर में फ्यूल यूज होता है, और इंडस्ट्रियल फ्यूल मतलब जो इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। तो it is used as a domestic fuel, and industrial fuel, दोनों में यूज होता है। Usually only for those industry which are located near the coal processing unit. Yes, वैसे इंडस्ट्री में यूज होता था जो कोल प्रोसेसिंग, जहाँ पे कोल का फॉर्मेशन होता है उसी के बगल में है, तो वो इंडस्ट्री में यूज हो जाता था। वैसे जनरली इट इज यूज इन द अवर डोमेस्टिक पर्पस। तो ये हमारा कोल आज खत्म हो गया, और आई होप कि आप याद कर लेंगे। और टुमारो मैं पेट्रोलियम, आई विल डिस्कस द पेट्रोलियम अच्छे से, एंड नेचुरल गैस, मे बी क्लीन फ्यूल भी वी कैन डिस्कस टुमारो। एंड आज आपका होमवर्क है कि यू लर्न द कीवर्ड्स प्रॉपरली एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द पेट्रोलियम का डायग्राम। ये आपके जो टाइप ऑफ कोल है इनका डायग्राम बनाइएगा। ये दो तो इस बुक में इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, इस बुक में यही दो इंपॉर्टेंट है। तो यू लर्न द कीवर्ड्स। एनी टाइम मेरा खत्म हो सकता था क्योंकि लेस देन 1 मिनट शो कर रहा है। तो आप होमवर्क, दिस इज द आपका होमवर्क है। आप कीवर्ड्स मैं पूछूंगी बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आई विल आस्क द कीवर्ड्स, और मुझे लगता है आपको याद भी होगा। ठीक है, आपको याद होगा। तो चलिए, तो पेट्रोलियम, जब तक टाइम है पेट्रोलियम पढ़ो। तो आदित्य कुमार,